Good afternoon, everyone. A warm welcome to all the COVE members and guests from across India. It's our proud privilege and honor to welcome our esteemed guest speaker for today, Mr. Nilesh Shah, Managing Director, Kotak Mahindra Asset Management Group. And also, it's our really an honor and privilege to associate with Malu Investwise Private Limited, which is who have really helped us to get this session together. Thank you so much. I would like to introduce a little bit our today's speaker and also Maluwise Investwise to our members. Mr. Nilesh Shah is the Group President and Managing Director of Kotak Mahindra Asset Management Company Limited, and he has over 25 years of experience in capital markets and market-related investments, having managed funds across equity, fixed income securities, and real estate for local and global investors. Mr. Shah, it's a pleasure to have you with us. And we look forward to an enlightening session from you, sir. Malu Investwise Private Limited is a financial and investment service firm established in 1992, and the purpose is to help the customers on their journey to fulfill their financial dreams. Today, with more than 28 years of experience, Malu Investwise is most esteemed and trusted financial and investment services in Rajasthan. While they strive to ensure optimal financial growth of the clients, they also look forward to developing long-term relationship while they invest with them. These 28 years have been successfully, they have helped a diverse range of investors from business owners and other through their financial services and dynamic information management. Dr. Ramesh Malu is the founder of Malu Investwise. He is a certified financial planner with greater than 25 years of experience in financial management. Dr. Malu is acclaimed for recognizing the investment opportunities in the open market through his pioneering PhD thesis titled Analysis of Investment Opportunities, a comparative study of mutual funds, equity, and traditional investments. Through his illustrious career, he has also been awarded CNBC TV 18 UTI MF and ICRA's Best Performing IFA Award for North Cities Tier 2. I would also like to introduce Mr. Kamal Malu, a chartered accountant who heads the research and tax planning division of the company. Through his analytical and logical skills, he has helped clients finding solution and best alternatives to tax planning and investment related issues. Thank you for bringing this session for our members. Confederation of Women Entrepreneurs of India is a pan-India organization with 1,000 plus members and 10 chapters across India. And we want to support by giving a nurturing atmosphere in Rajasthan to all the women entrepreneurs. And this is one of the sessions in this direction. I would like to now invite Mr. Kamal Malu to tell us more about Mr. Nilesh Shah and the session they are going to bring to us. Thank you so much. Malu sir. Thank you, Nidhi ji. Thank you, Nilesh ji. सर सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं जो अपना अमूल्य समय निकालकर इस समय इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। उनका सबका मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मालू फाइनेंस में हम पिछले 28 वर्षों से लोगों की वित्तीय सहायता कर रहे हैं। उनके वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति में हम उन लोगों की सहायता करते हैं और उनके लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो उसके लिए हम मदद करते हैं। उनके वित्तीय लक्ष्यों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं हम। इसके अलावा हम ये भी इस महामारी के दौर में हम सब लोगों के आप जो सभी लोग अटेंड कर रहे हैं और उनके परिवार के लोगों के लिए ये कामना करते हैं कि भगवान आप सभी को स्वस्थ रखे। इस बारे में इसके अलावा मैं मालू फाइनेंस के अलावा मैं निलेश जी के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ कि निलेश जी को फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल मार्केट के बारे में जो वर्कशॉप वगैरह ये आयोजित करते हैं उसमें बहुत ज्यादा इनको आनंद आता है, लोगों को ज्ञान बांटने में, लोगों को शिक्षित करने में। इसके अलावा निलेश जी आज हमारे कीनोट स्पीकर है और मैं इनको जानी मानी स्थिति, उनको कोई बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है।
उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि वो 25 साल से ज्यादा का उनको कैपिटल मार्केट का अनुभव है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। और इसके अलावा वो डेट फंड मैनेजर भी रहे हैं, इक्विटी फंड मैनेजर भी रहे हैं, रियल एस्टेट फंड्स भी उन्होंने मैनेज किए हैं। इसके अतिरिक्त वो इससे पहले एक्सिस कैपिटल में, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी में, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में, आईसीआईसी सिक्योरिटीज में इनमें इन्होंने लीडरशिप रोल करे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को बेस्ट फंड मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उन्हें खुद को भी 2004 में बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से बेस्ट फंड मैनेजर ऑफ द ईयर डेट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। वो एक रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इसके गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है और रैंक होल्डर कॉस्ट अकाउंटेंट है। उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग और इसके अलावा कैपिटल मार्केट के बारे में लोगों को शिक्षित करने में आनंद का अनुभव होता है। मैं नीलेश जी को बोले इससे पहले थोड़े से मैं अपने कुछ बहुत ही विशेष जो मेरे अनुभव है वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो जैसे 3 महीने का अंदर लॉकडाउन हुआ, उसके अंदर एक रिपोर्ट आई है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने ईपीएफ फंड से पैसे निकाले। 3-4 महीने के लॉकडाउन के लिए लोगों ने अपने पास इमरजेंसी फंड को मैनेज नहीं कर रखा। 3-4 महीने के लिए भी उनको रेंट देने के लिए, बच्चों की फीस देने के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए अपने जो फाइनेंस है उनको वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ज्यादातर लोग। तो उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ से ज्यादा सैलरीड क्लास लोगों ने अभी ईपीएफ से पैसे निकाले हैं और इस तरह के खर्चों के लिए। तो ये आने वाली स्थिति कितनी भयानक होगी इसके बारे में दर्शाता है कि आने वाली स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। आज के जमाने में जब आप 3-6 महीने के लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाला लॉकडाउन जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो 25-30 सालों का लॉकडाउन आपके सामने है। उस टाइम पे रिटायर्ड होने के बाद में 25 से 30 सालों का लॉकडाउन आपके सामने है। तो उसको मैनेज करने के लिए लोगों को अभी से ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस तरह से अपनी चीजों पे ध्यान दे और किस तरह से इस चीजों को मैनेज करे। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली होती थी, रिटायरमेंट की इतनी दिक्कत नहीं होती थी, खर्चे कम होते थे, लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं। मैं 2-3 दिन पहले अपने दोस्त के अंकल है जो रिसेंटली रिटायर हुए, उनसे मिला। उन्होंने लगभग 85 में अपनी फर्स्ट नौकरी ज्वाइन करी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी फर्स्ट जॉब में आपकी सैलरी कितनी थी। उन्होंने मेरे को बताया 515 रुपए। और अभी लास्ट में जब रिटायर हुए तो उनकी लास्ट सैलरी थी 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए की लास्ट सैलरी। तो इसी तरह से अगर कोई बच्चा जो आज 30-35 साल का है और अपना 1 लाख रुपए 50,000 रुपए पे अपना घर खर्च चला रहा है, तो जब वो रिटायर होएगा 60 के एज पे और उसको अगले 20-25 सालों के लिए पैसा चाहिएगा, उस टाइम उसको लगभग 4-5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। उसके लिए अभी अधिकतर लोग तैयार नहीं है। उनको यह भी पता नहीं है कि कितना पैसा चाहिएगा, किस तरह से रिवर्स कैलकुलेट करे वो, उनको किस तरह से उस चीज को मैनेज करना है, इस बारे में उनको अनुभव नहीं है। और जो आने वाला समय है उसमें लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है जो 2004 के बाद रिक्रूट हुए हैं, उनकी पेंशन कोई फिक्स नहीं है। उनकी पेंशन एनपीएस पे आधारित रहेगी, मार्केट रिलेटेड रहेगी। वो सफिशिएंट रहेगी नहीं रहेगी, ये उस टाइम का वक्त बताएगा कि वो सफिशिएंट रहती है नहीं रहती है। इन्फ्लेशन के अलावा बहुत सारी लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेज है। इसकी वजह से भी आपको पैसा ज्यादा चाहिएगा। नई नई चीजें आ रही, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई नई सुविधाएं आ रही है, आप उन सबको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पैसा चाहिएगा। तो सभी लोगों को ये जरूरत है कि अपनी रिटायरमेंट, जो बड़ा लॉकडाउन आएगा उनके जीवन में 20-25-30 सालों का, उसके लिए वो तैयारी करे, उसके लिए बात करे, चर्चा करे। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे जिनकी पेंशन आ रही है, जैसे सपोज कोई गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, 1 लाख रुपए पेंशन आ रही है, लेकिन उसके बच्चे की पेंशन नहीं आएगी। वो अभी बहुत ही प्रसन्नता में है कि उनके 1 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों की पेंशन नहीं आएगी। तो इस वजह से उनको अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहिए कि
जो मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं, मेरे को 1.5 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं, वो आपके पास कैसे आए 1.5 लाख रुपए पर मंथ? उसका इंतजाम कैसे हुए ईजी में? आज के 1.5 लाख में जब उनका चल रहा है तो वो किस तरह से हुए, इस बारे में बात करनी पड़ेगी। सभी को रिटायरमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो है कि बहुत से लोग केवल फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उनके लिए होता है सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो जो लोग केवल एफडी जैसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि उससे उनको दूसरे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। केवल एफडी में जो निवेश करते हैं, आज एसबीआई की रेट 5.5% के लगभग नॉर्मल सिटीजन के लिए है और 6.25 के लगभग सीनियर सिटीजन के लिए है। उसमें से भी अगर कोई टैक्स वगैरह देता है तो उसके बाद में रेट और कम हो जाती है। आफ्टर टैक्स देखेंगे तो आप रेट और कम हो जाती है। आफ्टर टैक्स रेट कम होने की वजह से अगर वो चीजों को हम देखें 72 के रूल के हिसाब से देखें तो वो कितने टाइम में डबल होता है, तो वो पैसा लगभग 15 से 20 साल में डबल होता है। 15 साल के लगभग में सीनियर सिटीजन का, 20 साल के लगभग में नॉन सीनियर सिटीजन का 20 या 30% के स्लैब में अगर वो आते हैं इनकम टैक्स के में, तो 15 से 20% के स्लैब में होता है। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी है कि पहले जब एक बार 1 लाख रुपए किसी का रिटायरमेंट में 1 करोड़ रुपए मिले उनको, और उन्होंने पूरा का पूरा पैसा एफडी में लगाया तो उनको लगभग 70,000 रुपए पर मंथ उनको मिलता रहे 5-7 साल बाद में। अब एफडी ड्यू हो रही है उनकी, पहले वो प्रसन्न थे कि 70,000 में मेरे को खर्चा चल रहा है, केवल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुए थे, उनकी पेंशन नहीं थी, तो 70,000 में उनको खर्चा चल रहा था, वो खुश थे कि 70,000 में मेरे को कोई म्यूचुअल फंड दूसरी चीजों की किसी की कोई जरूरत नहीं है, मेरा 70,000 में आराम से खर्चा चल रहा है। लेकिन आज जब उनकी एफडी ड्यू हो रही है तो उनको मिल रहा है 50,000 रुपए पर मंथ, और जो लाइफ स्टाइल और इन्फ्लेशन की वजह से उनके जो एक्सपेंसेज है वो आज की तारीख में है 90,000 रुपए। तो इस तरह जो केवल एफडी पे डिपेंड रहेंगे वो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएंगे और उनको आगे चल के समस्या आ सकती है। तो उनको लॉन्ग टाइम की सोच के अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। तीसरा है, एक बहुत से लोग जो टैक्स है उस एंगल को ध्यान में नहीं रखते हैं। मेरे एक छोटी सी लाइव एग्जांपल है जो मेरे साथ घटित हुए, एक लास्ट एग्जांपल है कि मेरे एक मिलने वाले हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट से रिटायर्ड थे, उनकी 50,000 रुपए पेंशन आती थी और वो 1 लाख रुपए में से मुश्किल से 50,000 रुपए खर्च करते थे। 50,000 रुपए खर्च करने के बाद में उनके पास में 50,000 रुपए बच जाते थे, वो इन्वेस्ट करते थे। और इसके अलावा जो उन्होंने रिटायरमेंट बेनिफिट मिले 1.5-2 करोड़ रुपए वो एफडी कर रखी थी और उस पर टैक्स दे रहे थे, वो 3-4 लाख रुपए टैक्स दे रहे थे हर साल के। तो ऐसे चीजें टैक्स प्लानिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटी ऑफ टैक्सेशन है डेट फंड इक्विटी फंड में, कि जब तक आप सेल ही नहीं करोगे तब तक कोई टैक्स ही नहीं देना उस पर। जब सेल करोगे, सपोज आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो 5 लाख रुपए पे ही टैक्सेशन की कैलकुलेशन करनी है आपको, तो टैक्स बहुत कम होता है। तो उनको मैंने समझाया तो उन्होंने वो पूरा पैसा डेट फंड में डाला और अभी लगभग उनका ये मानिए कि 11 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, उसके 53 लाख रुपए हो गए उनके, और अभी उन्होंने उस 53 लाख रुपए हो गए, उसके बाद में 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया 53 लाख पे। अगर 20% या 30% के स्लैब में होते हैं तो लगभग 10-12 लाख रुपए तो टैक्स दे चुके होते हैं उस चीजों पे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनसे आप अपने फाइनेंशियल को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि नीलेश जी हमारे साथ है, कहूँ कि वो हमें मार्केट आउटलुक के बारे में बताए और वेल्थ क्रिएशन और इन सभी विषयों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताए। नीलेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू कमल जी, थैंक यू नीति। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारे संस्कृति में हमें हमेशा कहा गया है कि पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक अमेरिकन इन्वेस्टर है जिसने पैसे के ऊपर जो बताया वो मुझे काफ़ी पसंद है। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ,
but make sure that you make that statement after making enough money. पहले पैसा बना लो और फिर जाके बोलो कि पैसे के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कई बार फैमिली में देखा है कि जब पैसों की बातचीत आती है तो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है। वाइफ हो, डॉटर्स हो, डॉटर इन लॉ हो, उनको उतनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है। एंड every family should share financial information with their male members as well as female members. हमारी कंपनी में हमारी CIO फिक्स्ड इनकम और हेड ऑफ रिसर्च इक्विटी दोनों फीमेल है एंड किसी भी महीने में वह मेरे से या मेरे दूसरे कलीग से कम नहीं है। इनफैक्ट कई बार उनकी सोच अलग होती है और वो ऐसे पहलू सामने लाती है जो हम लोग नजरअंदाज करते हैं। मैं एक किस्सा कहना चाहूंगा। ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, रियल लाइफ किस्सा है। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ, हमारे बीच नहीं है। वह अपनी वाइफ के साथ यूरोपियन वेकेशन पे एक बार गया था। जब वापस आया तो 15-20 दिन के वेकेशन के बाद ऑफिस गया। शाम को ऑफिस से आया तो मूड थोड़ा खराब था। वाइफ ने 2 मिनट में समझ लिया और पूछा कि नाराज क्यों है। सो ही सेड कि रिमेंबर हम एक प्रॉपर्टी देख के आए थे गुरुग्राम में, उन दिनों का गुड़गांव, और जब हम यूरोप की ट्रिप के लिए गए तो वो प्रॉपर्टी वालों ने अपने ऑफिस में सब लोगों को पूछा और 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट में बेच दिया। आज मैंने उसको वापस फोन किया कि भैया मैं यूरोप गया था, मिस हो गया, तो आज का भाव 3200 रुपया है। सो मोटा मोटा 400 रुपया पर स्क्वायर फीट या 15% अपने को ज्यादा देना पड़ रहा है। ये यूरोप की ट्रिप बहुत महंगी पड़ी। वाइफ ने पूछा कि आपको ये प्रॉपर्टी क्यों लेनी है, तो ये सेड कि गुड़गांव डेवलप हो रहा है, वहां पे प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिशिएट करेगी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, 1.5-2 साल में जब कंप्लीट हो जाएगा तो 5-5.5 हजार का भाव आ जाएगा। वाइफ ने बोला कि 2800 से 5000 पहुंचे या 3200 से 5000 पहुंचे, कमाना तो है ही है, और एक की जगह पे 2 प्रॉपर्टी ले लो तो ऑटोमेटिकली आपकी पहली प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। My friend took his wife's advice, booked 2 properties, and he ensured that his one property became completely free from the gains of the second property. अगर अल्फा मेल थिंकिंग होती तो वो यही रोता रहता कि ये यूरोपियन ट्रिप में नहीं जाते तो 2800 में बुक करते, बट अपने बेटर पार्ट से सोचा तो उसे वो पूरी प्रॉपर्टी फ्री हो गई। सो माय फर्स्ट सिंसियर रिक्वेस्ट विल बी कि आप फाइनेंशियल मैटर्स में घर के सारे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करिए। उनके जितने नजरिए मिलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा एंड आपके फाइनेंशियल डिसीजंस सही निकलेंगे। दूसरी चीज है कि हर किसी को पैसा बनाना है, बट हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आज बोले कल भाव ऊपर चले जाए, वो टाइप की सिक्योरिटीज या वो टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहिए। द रियलिटी इज दैट कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किसी भी मार्केट में मिलना मुश्किल है। आधे टाइम मार्केट नीचे जाता है, आधे टाइम ऊपर जाता है। नेट you have to remain invested to make money in the market. आज की तारीख में जो सबसे पहला सवाल आता है कि नीलेश भाई इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है और मार्केट देखो भाग रहा है, क्या इकोनॉमी और मार्केट में कोई कनेक्ट नहीं है क्या? आपका डाउट सही है। जब आप डेटा देखते हैं, महंगाई का हो, जीडीपी ग्रोथ का हो, क्रेडिट ग्रोथ का हो, एक्सपोर्ट्स का हो, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हो, ये सारे नंबर काफी नेगेटिव आ रहे हैं।
इसी चीज को मार्केट के नजरिए से देखे तो स्टॉक प्राइसेस इनको इग्नोर कर रहे हैं ऐसा लगता है, बट जो डेटा आ रहे हैं वो पास्ट के हैं, मार्केट फ्यूचर को देखता है और इस वक्त मार्केट ने अपने सहज एक सिनारियो बिल्डअप किया है। आने वाले समय में अगर ये सिनारियो इसी तरह डेवलप होता है और इससे अच्छी तरह डेवलप होता है तो मार्केट यहाँ से और ऊपर चलेगा। आने वाले समय में अगर सिनारियो इससे खराब डेवलप होता है तो ऑब्वियसली मार्केट में करेक्शन आएगा। आज 11,500 निफ्टी के ऊपर बॉटम से 50% ऊपर आने के बाद मार्केट क्या डिस्काउंट कर रहा है? सबसे पहले मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि भले कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हो बट जल्द से जल्द उसमें कोई मेडिकल सॉल्यूशन उभर के आ जाएगा और उस वजह से इकोनॉमी में लॉकडाउन या एक जो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है वो नहीं लागू की जाएगी, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी। अब अगर वैक्सीन डिले हो जाता है, वापस लॉकडाउन लग जाता है इकोनॉमी के ऊपर तो मार्केट यहाँ से गिरेगा। बट अगर वैक्सीन यह साल के अंत तक आ जाती है, हम लोग वायरस के साथ जीना सीख ले और नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे डिस्पाइट राइजिंग केसेस, तो ऑब्वियसली मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, मार्केट ने इस समय डिस्काउंट करके रखा है कि रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये सारे लोग इक्विटी मार्केट में खरीदारी करते रहेंगे। काफी रिटेल इन्वेस्टर्स है, घर पे बैठे हैं, समय पसार करने के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चालू कर दी है। 40 लाख से ज्यादा निवेशकों ने डीमैट अकाउंट खोले हैं अप्रैल से अगस्त के बीच में। एफपीआईज की बाइंग कंटिन्यूअसली भारत में चालू है और इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग, थोड़ी बहुत सेलिंग करते रहते हैं। सो जब तक ये फंड फ्लो पॉजिटिव है मार्केट में, तब तक मार्केट सपोर्टिव रहेगा। जिस दिन फंड फ्लो नेगेटिव होगा उस वक्त मार्केट में करेक्शन आ सकता है। इस वक्त एफपीआई के फ्लोज में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट में सब जगह से वो लोग रिडम्पशन कर रहे हैं, सिर्फ भारत में पैसा निवेश कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि एफपीआई का फ्लोज कब तक चलता है, बट जब तक वो फ्लो चालू है तब तक मार्केट में करेक्शन आने की गुंजाइश कम है। तीसरी चीज जो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि FY21 में तो कंपनी के रिजल्ट्स खराब आएंगे। पहले क्वार्टर में 24% से जीडीपी गिरी है तो कंपनी के रिजल्ट्स नतीजे गंदे आएंगे। दूसरा तीसरा क्वार्टर भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आए, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करे, ऐसी उम्मीद नहीं है। बट हाँ, ये उम्मीद जरूरी है कि FY22 में वहां पे कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छे होंगे और कोरोना वायरस हमारे पीछे चला गया होगा तो ये सारी कंपनीज अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे पाएगी। नाउ क्लियरली अगर कोरोना वायरस हमारे साथ रहता है और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता रहता है और ये अनुमान कि FY22 में सारी चीजें ठीक हो जाएगी वो गलत होता है तो मार्केट नीचे गिरेगा। बट अगर ये अनुमान सही आता है कि धीरे धीरे करके वायरस वैक्सीन की वजह से, मेडिकल की वजह से या किसी और कारण की वजह से कंट्रोल में आ जाए और हम जनवरी 2020 में जिस तरह से जीवन व्यतीत करते थे, धंधा पानी करते थे, वैसे ही बहुत जल्द करना चालू कर दे तो ऑब्वियसली मार्केट सपोर्टिव रहेगा। इसके बाद मार्केट एक और चीज डिस्काउंट कर रहा है कि आज दुनिया में बहुत सारी कंपनीज चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज निकालना चाहती है, दूसरे देशों में ले जाना चाहती है। एंड दुनिया के सारे देशों में एक दौड़ सी लगी है, वह इन कंपनीज को चाइना से अपने देश में लाना चाहती है। 1980 के दशक में भारत और चाइना की इकोनॉमिक साइज बराबर थी। आज चाइना हमसे 5 गुना बड़ा हो गया। 40 सालों में उन्होंने हमें 5 गुने से ज्यादा पीछे छोड़ दिया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है
कि चाइना मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड बन गया। दुनिया की कोई भी आइटम देख लो, उसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन 30, 40, 50, 60, 70, 80% है। दुनिया भर में जितनी सोलर पैनल बनती है 70% से ज्यादा चाइना में बनती है। भारत में जो ड्रग्स के इंटरमीडिएट्स आते हैं तकरीबन 80 से 90% चाइना से आते हैं। तो उनकी ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है उसने चाइना को हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया। अब जो कंपनीज चाइना में 1980, 90, 2000 के दशक में कंपनीज फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रही थी, अब वहां से वो निकलना चाहती है। एंड दुनिया के सारे देश उनको अपने वहां ले जाने के लिए कतार में खड़े हैं। बट अगर भारत भी उन कंपनीज को अपने वहां पे लेके आ सकता है, एक रेड कारपेट लगा के हम उनका स्वागत कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। हमारी जीडीपी जो एक उम्मीद थी $5 ट्रिलियन पर ले जाने की, वो आसानी से अचीव हो जाएगी। ये कंपनीज कितनी बड़ी हो सकती है, एक मिसाल देता हूँ। सैमसंग करके कोरियन कंपनी है, उसके टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फोन्स आपने यूज किए होंगे। यह भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी में काउंट की जाती है। $12 बिलियन से ज्यादा उनका टर्नओवर है, 75,000 करोड़ के ऊपर, 80,000 करोड़ के ऊपर। यह भारत में बहुत समय से ऑपरेट कर रही है, भारत में बनाती है, भारत में बेचती है। सैमसंग वियतनाम में भारत के बाद गई, वियतनाम में बना के वो पूरी दुनिया में बेचती है। वियतनाम भारत से 1/10 साइज की इकोनॉमी है। हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी थे, वो 300 बिलियन डॉलर इकोनॉमी थे। वियतनाम की इकोनॉमी में सैमसंग कंपनी का टर्नओवर $62 बिलियन है। भारत के $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में उनकी टर्नओवर $12 बिलियन है। वियतनाम की 300 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में उनकी टर्नओवर $62 बिलियन है। 1/10 the size of country and 5 times turnover than India. अकेला सैमसंग वियतनाम की इकोनॉमी में 28% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। भारत की टॉप 100 कंपनी भी अगर हम जमा कर ले तो वो 28% जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं करती। इट जस्ट शोज कि एक सैमसंग आके वियतनाम की तकदीर बदल सकती है। हमें ऐसे सैमसंग्स को चाइना से लाना है, और जैसे वियतनाम ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया, वैसे ही भारत में करना है। अगर ये कर लेते हैं तो $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाना काफी आसान होगा। मार्केट आज ये उम्मीद लगा के बैठा है कि सरकार रेड कारपेट लगाएगी, इन कंपनीज को चाइना से भारत लेके आएगी, और यहाँ पे ये सैमसंग की तरह ग्रो करेगी, यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी और भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ये सारी चीजें मार्केट आज डिस्काउंट करके बैठा है, और इसीलिए डिस्पाइट बैड डेटा, डिस्पाइट नेगेटिव डेटा, मार्केट्स आर रनिंग हायर। अब एक सवाल उठता है कि नीलेश भाई ये सब तो ठीक है, आने वाला समय कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये हम कैसे समझ पाए, और आप भी कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। ऑब्वियसली हम चीजों की अनुमान लगा सकते हैं, इवेंट कैसे शेप होगी ये अपने हाथ में नहीं है। आज 300 से ज्यादा वैक्सीन कोविड-19 के लिए डेवलपमेंट में है, 35 से ज्यादा वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल चल रही है, 4 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में पहुंची है। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अब यहाँ से मेडिकल सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। बट वैक्सीन में अगर फेज 3 ट्रायल में फेल हो जाए तो ऑब्वियसली मेडिकल सिचुएशन बिगड़ेगी, मेडिकल सोल्यूशन डिफर हो जाएगा। तो हमारा काम है एक इन्वेस्टर के लिए अनुमान लगाना, बट हम कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, ज्योतिषी तो है नहीं कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ले कि अब ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। सो आप एज ए निवेशक यह टाइप की मार्केट में कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? डियर इन्वेस्टर्स, देयर आर 3 गुरु मंत्रास ऑफ वेल्थ क्रिएशन: regular investment, little drops of water make ocean. Long-term investment, you have to wait for 12 years to get good mangoes from a mango tree.
asset allocation. Don't put all eggs in one basket. People are familiar with long-term investment, but asset allocation is something which they get confused. Making money is essentially buying things which are cheap and selling which are expensive. It's so easy to say, but very difficult to do. Kotak Balance Advantage Fund allocates equity between 20% to 80% of fund, looking at the valuation. When we are allocating 20 to 40% in pure equity, we are looking at equity markets becoming expensive. When we allocate between 60 to 80%, we are looking at equity markets becoming cheap. And 40 to 60% allocation is a neutral allocation. I'm very happy to say that over last 2 years, Kotak Balance Advantage Fund has been able to capture directionally this saying of buying when things are cheap and selling when things are expensive. On 17th of Jan 2020, when Nifty touched 12,352, our pure equity allocation in Kotak Balance Advantage Fund came down to 39%. This was a signal that markets are becoming expensive and one should become marginally underweight in equity. On 24th March 2020, when Nifty bottomed at 7,801, our equity allocation touched 75%. This was a signal to be super overweight in equity. On 31st August, when Nifty is about 11,387, we are somewhere towards neutral allocation with 45% allocation to equity. Directionally, we bought equity when markets were cheap in March 20. Directionally, we sold equity when markets were becoming expensive in Jan 20. And today, we are at neutral weight. Our model of balancing our Balance Advantage Fund has worked well in past 2 years. And I recommend you to look at our website and see how much equity we are allocating in our Balance Advantage Fund to decide for you whether you should be overweight equity like in the month of March 20, or you should be underweight equity like in the month of Jan 20, or you should be neutral weight equity like we are speaking today. एक सवाल फिर आता है कि नीलेश भाई इक्विटी के सिवाय और किसी चीज को देखें, और डेफिनेटली इक्विटी के सिवाय भी असेट क्लासेस है जिसको देखना चाहिए. ऑफशोर इक्विटी, ऑफशोर असेट क्लासेस आर इमर्जिंग क्वाइट नाइसली. आप यूएस के इक्विटी जो फंड्स यूएस इक्विटी में निवेश करते हैं उसको देख सकते हैं. ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स में निवेश कर सकते हैं. ग्लोबल फिक्स्ड इनकम फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं. सो थोड़ा पैसा आप ग्लोबल फंड्स में, ऑफशोर एसेट्स में अगर निवेश करें तो इस समय वह योग्य होगा. फिर सवाल आता है गोल्ड के ऊपर. 1450 के आसपास गोल्ड था मार्च 2020 में. आज तकरीबन $1950 के आसपास आ गया है. पिछले 6 महीनों में गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है. हमारी उम्मीद है कि यहाँ से भी गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी. ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा. बट गोल्ड प्राइसेस में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, उस वजह से एक सपोर्ट बना रहेगा. गोल्ड में निवेश करने समय आपके पास 3 चॉइस है. फिजिकल गोल्ड खरीदे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है वह खरीदे, या फिर गोल्ड ईटीएफ को या गोल्ड फंड ऑफ फंड को खरीदे. फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये तीनों के लिए, तीनों गोल्ड में निवेश करने के लिए ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव्स है. गोल्ड में निवेश करते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, भारत में गोल्ड के ऊपर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी है. जो
गोल्ड आपको $100 दुबई में मिलता है, वही गोल्ड भारत में $112.50 पे मिलता है, बिकॉज 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी है। अगर कल इम्पोर्ट ड्यूटी कम होती है तो एक ही दिन में गोल्ड प्राइसेस टू दैट एक्सटेंट गिर जाएंगे। सपोज कल को गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी 0% कर दी तो सोने के भाव में एक ही दिन में 12.5% कटौती हो सकती है। सब्जेक्ट टू दैट रिस्क, गोल्ड एज एन एसेट क्लास कैन बी ओवरवेट। हमें लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 3 to 5 years, gold prices can be higher than the prevailing level. Then बात आती है फिक्स्ड इनकम फंड की। देन कम्स कि नीलेश भाई अगर रिस्क लेना है तो हम इक्विटी में लेंगे, डेट में निवेश करते हैं तो रिस्क नहीं लेना है। अगर ये टाइप की सोच है तो डेट में डायनामिक बॉन्ड फंड है, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है। उसमें ज्यादातर पैसा ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, उसी में निवेश होता है। और वहां पे कंपेयर टू क्रेडिट रिस्क फंड, क्रेडिट रिस्क बहुत कम है। तो जिन्हें डेट फंड में रिस्क लेना है वो क्रेडिट रिस्क फंड देख सकते हैं। जिनको क्रेडिट रिस्क नहीं पसंद है वह बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या डायनामिक बॉन्ड फंड में निवेश करना देख सकते हैं। फाइनली इफ आई हैव टू समराइज, आज का व्यू है इक्विटी इक्वल वेट है, ना महंगा है ना सस्ता है मार्केट। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के ऊपर भी कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। तीनों कैटेगरी में आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलोकेट कर सकते हैं। गोल्ड में ओवरवेट रहने का समय है, बट डू रिमेंबर कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो आपके रूपी गोल्ड प्राइस में उतनी ही कटौती आ सकती है। फिक्स्ड इनकम में अगर आप एक दो क्रेडिट इवेंट या क्रेडिट रिस्क को देख सकते हैं, सहन कर सकते हैं, तो क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश करना उचित होगा। अगर आपको क्रेडिट रिस्क फंड से परहेज है तो डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, इसमें निवेश कर सकते हैं। With this, Nidhi ji, I will be happy to take questions. You are on mute. Yes, sir. निधि जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे है। निधि मैम आप म्यूट पे हैं। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। मैम काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट पे हैं। नीलेश जी, जब तक मैं पूछ लूं कुछ आपसे सवाल। हाँ, अच्छा, आ गए निधि जी। Yeah, I'm here, Nilesh ji. Thank you so much. It was a very, very enlightening session, sir. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि women like everything to be very simplified, more like given on a platter to them. So, अगर आप एक सिंपल सा हमको एक कोई बेसिक एक आइडिया दे कि कितना परसेंट, आपने अभी कहा कि गोल्ड इज ऑल्सो लाइक यू नो इट्स शाइनिंग राइट नाउ, बट समटाइम्स it loses its shine. So like you know overall what type of bifurcation हमको करना चाहिए कि गोल्ड में इतना आप इन्वेस्ट करें और डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, यू नो रिस्क लेने की कितनी किसकी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर एक बेसिक आइडिया अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो नीति जी, इसमें क्या है कि देयर इज नो वन साइज फिट ऑल। एक है आपको कि मार्केट कैसा है, जैसे इक्विटी में इक्वल वेट है, गोल्ड में ओवर वेट है। क्रेडिट रिस्क अगर एक पर्टिकुलर रिस्क प्रोफाइल है तो ओवर वेट है, नहीं तो जीरो वेट है। सो एक है कि मैं मार्केट के हिसाब से देखूं, दूसरा है कि मैं अपने हिसाब से देखूं। अब लेट्स से एक 70 साल के इन्वेस्टर है। एक इन्वेस्टर को पैसा इसलिए चाहिए कि उनका जीवन निर्वाह उस पैसों से होता है, तो ऑब्वियसली एट 70 इयर्स ऑफ एज उनकी रिस्क बहुत कम हो जाती है, बिकॉज वो पैसे पे ही उनका जीवन निर्वाह होता है। दूसरे जो 70 इयर्स वाले, उनके बच्चे उनका पूरा ध्यान रख लेते हैं और इनको इन्वेस्ट करना है कि मैं अपने पोतों के लिए हेरिटेज छोड़ के जाऊं,
उनके लिए मुझे निवेश करना है। दोनों की उम्र 70 साल की है, पर दोनों की रिस्क प्रोफाइल एकदम अलग है। अगर मुझे अपने पोतों के लिए पैसा छोड़ के जाना है, मैं इक्विटी में निवेश कर सकता हूँ, बट अगर पैसों से मुझे जीवन निर्वाह करना है तो ऑब्वियसली मैं इक्विटी में बहुत कम निवेश करूंगा, फिक्स्ड इनकम में ज्यादा करूंगा। तो एक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, दूसरा मार्केट का वैल्यूएशन देख लीजिए, फिर वो दोनों का मिश्रण करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि गोल्ड में मैं इतना पैसा लगाऊं, इक्विटी में इतना लगाऊं, रियल एस्टेट में इतना लगाऊं, फिक्स्ड इनकम डेट में इतना लगाऊं और ऑफशोर एसेट्स में इतना लगाऊं। एक गृहिणी है, वो हमेशा डिसाइड कर लेती है कि घर में कितने दाल बनेगी, कितने चावल बनेगा, कितनी रोटी बनेगी, कौन सी सब्जी बनेगी। एंड कई बार ऐसा होता है कि एक गेस्ट आ जाता है, उसे पता भी नहीं है, हस्बैंड लेके आ जाता है और वो बड़े आसानी से उसके अंदर मिल जाता है, उसको भी खाना मिल जाता है। कभी पता नहीं चलता है कि गृहिणी ये कैसे कर लेती है। तो ये जो आपके पास एक बख्शीश है कुदरत की कि आप ये थाली बना सकती है पूरी फैमिली के लिए, सेम चीज आपको इन्वेस्टमेंट में करनी है। ठीक है सर, रियली नाइस, थैंक यू सो मच। कमल जी आप पहले अगर कुछ और, फिर हम ले लेंगे हमारे मेंबर। हाँ जी, नीलेश जी एक सवाल आ रहा है, कुछ लोगों ने बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी 1 महीने 2 महीने की रिटर्न अच्छे नहीं रहे। वैसे उनको 2-3 साल 5 साल के लिए भी पैसा रख सकते हैं, लेकिन अभी के जो रिटर्न देख रहे हैं उससे वो विचलित हो रहे हैं। तो इतने लंबे टाइम के लिए जब उनका टाइम हो रहा है जो लंबा है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? अभी सेफ्टी और ठीक ठाक रिटर्न चाहिए उनको। ये बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में रिटर्न नेगेटिव क्यों हुई 1-2 महीने के लिए, या कम क्यों हो गई 1-2 महीने के लिए? इसका एक रीजन है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो थी वो 5.80 से 6.22 पे चली गई। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो मार्क टू मार्केट लॉस होता है, और हमारे वहां पे एनएवी डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है, इसलिए मार्क टू मार्केट लॉस रोज का रोज फैक्टर हो जाता है। बट अगर आप 3 साल का व्यू लेके आए हैं तो 1 महीने 2 महीने में क्या हो, कितना नेगेटिव रिटर्न हुआ, कितना कम रिटर्न हो, उसका कोई मायना नहीं रखता। मार्च के महीने में लिक्विड फंड ने 5 दिन के लिए नेगेटिव रिटर्न दिया था, बिकॉज स्प्रेड्स बढ़ गए, ब्याज की दरें ऊपर गई। छठे दिन पे ब्याज की दरें नीचे आई और 6 दिन का रिटर्न एक ही दिन में आ गया। जो 5 दिन के नेगेटिव रिटर्न से विचलित हो गया, उसे नेगेटिव रिटर्न मिला। जिसने उसको इग्नोर किया और 7वें दिन रिडीम किया, उसको 7वें दिन का रिटर्न मिल गया। हमारे वहां पे डेट फंड्स में मार्क टू मार्केट होता है, इसलिए लोगों को यह नेगेटिव रिटर्न दिखता है। बट अगर आप 3 साल की अवधि ले ले तो कोई डेट फंड में नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस ना के बराबर है। एक आध एक्सेप्शन होगा, बट बाय एंड लार्ज ऑल डेट फंड्स विल डिलीवर फार बेटर रिटर्न ऑन अ 3 ईयर बेसिस। नीलेश जी एक ये सवाल आ रहा है अभी इन दिनों में, इवन आरबीआई गवर्नर का भी एक न्यूज चल रही थी कि इकोनॉमी है वो डाउन है, वो शेयर मार्केट है बीच में डाउन हुआ वापस बढ़ गया, तो दोनों में बिल्कुल विपरीत तरह से अपना प्रभाव दे रहे हैं दोनों। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए सर। कमल जी, जैसा मैंने पहले बताया कि मार्केट तो फ्यूचर देखता है और डेटा तो पास्ट का आता है। तो इस वक्त तो डेटा खराब ही आएगा, बिकॉज हम अप्रैल में पूरा लॉकडाउन करके बैठे थे। सितंबर में भी हम पूरी तरह से तो खोल के काम नहीं कर रहे हैं, बट मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा है कि अब ये 4 वैक्सीन है, उसमें से एक आध पास हो जाएगी, और एक बार वैक्सीन हो गई तो लोग नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी चालू करेंगे। मार्केट जो डिस्काउंटिंग करता है वो आने वाले 2 साल, 20 साल, 25 साल की करता है। डेटा जो आता है वो पिछले 3 महीने का, पिछले महीने का या पिछले साल का आता है। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर देख के ही तो गाड़ी नहीं चलाते। जब लाइन बदलनी है तो रियर व्यू मिरर देखेंगे, बट अदरवाइज तो आगे ही देखेंगे। तो मार्केट आगे देख के चलता है और इकोनॉमी का डाटा पीछे का आ रहा है, इसलिए लोगों को डिस्कनेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल सही है सर। हाँ, मैं एक क्वेश्चन आपसे एक और करना चाह रही थी सर,
कि जिस तरह का अभी सिनेरियो है उस सिचुएशन में भी, जैसे कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, फेमस इन्वेस्टर्स हैं, लेट्स टेक वॉरेन बफे, कि आपने एक बार अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया एंड देन यू फॉरगेट अबाउट दोज शेयर्स, कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए आपने इन्वेस्ट किया, दे आर ब्लू चिप कंपनीज, वेरी गुड कंपनीज, एंड देन यू स्लीप ओवर देम, ओनली व्हेन यू नीड द फंड्स यू टच दोज शेयर्स। आपकी उसके बारे में क्या ओपिनियन है? अभी जैसा सीन है उसमें, मतलब निधि जी, अपनी जो कहावतें हैं वो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है। एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्डन। इन गुजराती न बोलवामा नव गुण, न बोले तो वो नव गुण है। हाँ जी। दूसरी कहावत है which says that person who speaks he will be able to sell। बोले है ना बोर बेचाए। The person who shouts the loudest or the loudest crying baby will get the maximum milk. Now, both these proverbs are right, but this needs to be evaluated in the concept. So when a legendary investor like Warren Buffett says, it needs to be evaluated in the context in which he is talking about. Warren Buffett's wealth happened because he was concentrated in Berkshire Hathaway shares. Yes. Mukesh Ambani is wealthy because his wealth is concentrated in Reliance Industries Limited. Yes. Now, there are as many examples of people who have made money because they were concentrated in one stock, like Warren Buffett himself, Bill Gates with Microsoft, Jeff Bezos with Amazon, Mukesh Ambani with Reliance Industries, and so on and so forth. But वो promoter है, वो अपनी कंपनीज में निवेश करके बैठ सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे से अच्छी कंपनी के शेयर के दाम में 10% कटौती हो जाए तो वो शेयर बेच के निकल जाएगा। तो एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए कंसंट्रेशन रिस्क बहुत हैवी हो जाता है। वहां पे वो जो एक प्रोवर्ब है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इज मोर एप्लीकेबल। इफ यू आर knowledgeable investor, then you can bet on few stocks. But if you are risk averse investors, if you are an ordinary investors, then it is better to go into diversified portfolio, because एक कंपनी में कुछ गलत हो जाए, सही हो जाए, आपके पूरे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं आनी चाहिए। फिक्स्ड इनकम में देखिए, अगर आपने सारा पैसा दीवान हाउसिंग फाइनेंस में लगा दिया होता उसकी एफडी में, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाती। बट ऐसे फंड में लगाए जिसमें 2%, 5% दीवान में है, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। So for an ordinary investor, diversified portfolio is better. For a smart investor, he can take concentrated risk. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. सर आप म्यूट पर हैं। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करेंगे सर आप। हाँ, नीलेश जी। रमेश जी, हाँ, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से यूएस इकोनॉमी में मार्केट डाउन था मार्च लास्ट वीक में, और फिर इंडिया भी उसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है, जैसे मार्केट बढ़ने में भी जैसे और गिरने में भी जैसे। अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च देखें, और अप्रैल, मई, जून से फिर वापस मार्केट बढ़ा, तो क्या बिल्कुल यूएस को फॉलो करता रहेगा इंडिया मार्केट, या क्या है? मतलब ऐसे दोनों में क्या रिलेशन है, और इन्वेस्टर को किस तरह से सोचना चाहिए इस बारे में? और क्या ग्लोबल एक्सपोजर अगर यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो वो अपने पैसे का कितना करें? तो फिर उसकी रिस्क तो डाइवर्सिफाइड नहीं हो रही है, अगर मान लीजिए सेम फॉलो कर रहा है तो इस पे थोड़ा सा बताएं। श्योर। सो रमेश जी, होता क्या है कि इन द शॉर्ट टर्म फ्लोज ग्लोबली मूव्स इन सेम डायरेक्शन। यूएस लिक्विडिटी अपनी कंट्री में डालता है तो वो पानी बाढ़ की तरह उभर के सारे दुनिया में पहुंच जाता है। एंड जनरली देखा है कि यूएस पैसा डालता है अपनी इकोनॉमी में, उसकी मार्केट चलती है, उसके पीछे पीछे वो लिक्विडिटी उभर के बाहर आती है, तो बाकी लोगों की मार्केट चलती है। एंड दैट्स हाउ यूएस एंड इंडिया लुक्स कनेक्टेड। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूएस और इंडिया में अपने अपने फंडामेंटल्स है। जब मैंने अपनी करियर चालू की थी तो डाउ जोन्स सेंसेक्स से काफी ऊपर था,
अब सेंसेक्स डाउ जोन्स के ऊपर है, तो ये डिस्कनेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाती है, बट इन द शॉर्ट टर्म थोड़ी कनेक्शन है, बिकॉज ग्लोबली पैसों का फ्लो यूएस से ड्रिवन है। जिस दिन अपने इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर से ज्यादा हो जाएंगे, अपनी मार्केट हमारे दम पे चलेगी, नहीं तो तब तक हमें यूएस के दम पे चलना पड़ेगा। अगर आप यूएस की मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड अच्छे हैं, S&P 500 इंडेक्स फंड है, नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड है, कुछ एक्टिव फंड भी है जो गिने चुने यूएस स्टॉक्स में निवेश करते हैं। यूएस में निवेश करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि वहां पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो भारत में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास फेसबुक के बराबर कोई कंपनी नहीं, अमेजोन के बराबर कोई कंपनी नहीं, गूगल के बराबर कोई कंपनी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के बराबर कोई कंपनी नहीं, एप्पल के बराबर कोई कंपनी नहीं। तो ये टाइप के बिजनेस के ऊपर एक्सपोजर लेने के लिए यूएस में निवेश करना जरूरी है। ये हमसे प्रोबेबली 15, 20, 25 साल आगे के बिजनेस आज चला रहे हैं और इसीलिए उसमें निवेश करना योग्य रहेगा। सर, मैं एक क्वेश्चन और पुट अप करना चाह रही थी। अभी आपने मेंशन किया दैट जस्ट नाउ द मार्केट, दिस रियल एस्टेट मार्केट इज रियली डाउन, बट जैसा आपने ये भी कहा साथ में कि जब सेल लगती है तो आपको उस समय यू हैव टू गो इन फॉर शेयर्स ऑफ दोज कंपनीज। तो आपको क्या लगता है, मतलब इज इट, यू थिंक इट इज a right time or good time to invest in real estate shares? रियल एस्टेट शेयर्स और रियल एस्टेट दो अलग अलग चीज है। रियल एस्टेट में क्या होता है कि कई बार जो बिजनेस मॉडल है वो उतना क्लीन नहीं है। कई बार देखा है कि लोग काला पैसा देते हैं फ्लैट की खरीदारी में, जमीन की खरीदारी में भी कभी कभी वो टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। सो उस वजह से जो रियल एस्टेट कंपनीज की बैलेंस शीट है या इनकम स्टेटमेंट है उसके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते। और जब पैसों में भरोसा नहीं हो तो आपकी वैल्यू कभी नहीं बनती। सो रियल एस्टेट स्टॉक में निवेश करने की जो एक मार्केट में I will say institutional investors will not buy real estate stocks because they don't think the governance standards of real estate companies are good. So as a retail investor, try to invest only with those developers whose balance sheet you can trust, whose governance standard you can believe. And real estate mein that is at a premium. Very few companies have clean accounting and clean standards. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. नीलेश जी, मेरा एक सवाल और था। हाँ जी। नीलेश जी, आप तो रिलायंस के मैनेजमेंट के साथ काफी टाइम से टच में हो, और एक बार मैं मुंबई में आया था तो आप शायद उनके ऑफिस ही जा रहे थे मिलने, अपन लिफ्ट में मिले थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे रिलायंस ने लास्ट जो 3, 4, 6 महीने में जितना पैसा वो इंडिया में लाए, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में जो उन्होंने पैसा 2 लाख करोड़ इकट्ठा किया, तो इनकी वर्किंग तो काफी टाइम से पहले से चलती होगी कि एक दिन में कोई सफलता मिलती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरा मानना है कि एक दिन में न तो अनिल अंबानी खराब हुआ और न एक दिन में मुकेश अंबानी बना। तो ऐसे जो निवेशक हैं वो ये चाहते हैं कि एक दिन में या एक महीने में, एक साल में पैसा बना ले, है ना। और इस बात से तो मैं, मतलब इस पे आप अपना विचार व्यक्त करिएगा कि सही है। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से रिलायंस ने किया मार्केट में पॉजिटिविटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो 3 महीने में जो पॉजिटिविटी की, क्या वैसी और भी कॉर्पोरेट या और भी कंपनियां हैं जो इंडिया में पॉजिटिविटी या जो मार्केट में मेन जो पॉजिटिविटी रही, अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स के वेट में देखें तो रिलायंस का सबसे बड़ा वेटेज रहा बढ़ने में, और रिलायंस का सेल्फ वेटेज के अलावा उसने पूरे माहौल को चेंज कर दिया। तो क्या और भी कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो इंडिया में इस तरह से चीजें बदलेगी या क्या बदलेगी, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए सर। रमेश जी, मतलब
ये ऑलमोस्ट 1991 जैसा समय है। उस समय हमने लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म्स चालू किए। सो एक सेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन थे जो गालियां देते थे सरकार को कि मैं 300% इम्पोर्ट ड्यूटी प्रोटेक्शन पे काम कर रहा था, अब तुमने इम्पोर्ट ड्यूटी 30% कर दी, मैं कॉम्पीट कैसे करूं। दूसरी तरफ ऐसे भी एंटरप्रेन्योर थे जो सरकार की वाहवाही कर रहे थे कि बस अभी ये सारे अपने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, अब तो हम जाके दुनिया कैप्चर करके आएंगे। बहुत सारे टेक्सटाइल मिल ओनर्स थे, बहुत सारी एनबीएफसी थी, बहुत सारी एक्वाकल्चर कंपनी थी, बल्क ड्रग्स कंपनी थी। लोगों ने वहां पे जम के पैसे खोए। बट आईटी कंपनी थी, फार्मा कंपनी थी, टेक्नोलॉजी कंपनी थी, वो सबने जम के पैसे बना दिए। समय एक ही था 91 का। एक सेट को बहुत फायदा हुआ, दूसरे सेट को बहुत नुकसान हुआ। जो दिग्गज कंपनी सेंसेक्स में थी वो मिट्टी में मिल गई, और जो कंपनी एकदम लोअर लेवल पे थी वो सेंसेक्स में पहुंच गई। सो इट इज ऑल अबाउट बिजनेस एंड बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, हाउ ही एक्सेप्ट्स सिचुएशन। आज 2020 में कोविड-19 ने भी वही अपॉर्चुनिटी की है। कुछ कंपनीज है जिनको बहुत तकलीफ पड़ेगी, कुछ कंपनीज है जो इनका प्रॉपर एडवांटेज उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइजू करके कंपनी है, अनलिस्टेड है, मैं भी उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, बट उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग की एक मुहिम चला के रखी है। अब कोविड-19 में उनको सबसे ज्यादा फायदा हो गया, बिकॉज स्कूल चालू नहीं है, आपको बाइजू की ऐप से ही लर्न करना है। क्वालिटी उन्होंने बरकरार रखी है, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, शाहरुख खान उनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये सारी चीजों ने मिला के आज बाइजू को $10 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी वैल्यूएशन 70-75 हजार करोड़ से ऊपर है। आज से शायद 10-12 साल पहले ये कंपनी को कोई जानता भी नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा हो सकता है, पर ये कंपनी ने वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर की, उनका काम हो गया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां पे कंपनीज, स्टार्टअप्स आके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को चैलेंज कर रहे हैं, और उस चैलेंजर की वजह से एग्जिस्टिंग कंपनीज डायनासोर बन रही है, उनके सामने कॉम्पीट नहीं कर पा रही, इनफैक्ट नीचे गिर रही है, और ये कंपनीज बड़ी होती जा रही है। सो मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दिन में तो रातों रात चमत्कार होना मुश्किल है। ठीक है। आवाज कट रही है। आई कैन हियर यू। हाँ सर, या आप कुछ, मालू जी आप पूछना चाह रहे थे? और हाँ, एक मिनट। मैं ये पूछ रहा था नीलेश जी कि आप तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कमेटी में भी हो, एमपी में भी हो, लेकिन इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो आप कह रहे हैं कि जैसे नंबर ऑफ अकाउंट शेयर मार्केट में डायरेक्ट ज्यादा खुले हैं, है ना, कंपैरेटिवली पिछले लॉकडाउन में। तो म्यूचुअल फंड वाले जैसे फ्रैंकलिन की जो घटना हुई, या निफ्टी को बीट नहीं कर रहे हैं, निवेशक के ये सवाल रहते हैं कि इंडेक्स से ज्यादा उसको रिटर्न मिले बेंचमार्क से। तो आप लोग उस भरोसे को कायम रखने के लिए क्या काम कर रहे हैं, निवेशक के भरोसे को, कि निवेशक को क्या करना चाहिए? कि अभी जैसे कई निवेशक जो शेयर मार्केट में जैसे कई डबल ट्रिपल हुए शेयर, तो उस लालच के चक्कर में डायरेक्ट अकाउंट ज्यादा खुल रहे हैं डीमैट के, तो उसके लिए क्या निवेशकों को क्या करना चाहिए? और आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप कमेटी में है, एमपी में है, सेबी में है, तो उस पर क्या करना चाहिए, कि उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? इसके लिए आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए, और आप पर्सनली अभी जैसे अपने मीटिंग में जो लोग डायरेक्ट जाते हैं शेयर मार्केट में, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? सो रमेश जी, भरोसा कब आता है? भरोसा आपकी कंडक्ट के ऊपर आता है। As long as I am doing my job properly, people will trust me. अभी अप्रैल में
जब टेम्पल्टन ने अनाउंस किया 6 स्कीम वाइंड करनी है, तो मैं और मेरे कुछ मित्र, दूसरे म्यूचुअल फंड्स के सीईओ, हम सब टीवी पे गए और हम सब ने कहा कि आप विश्वास करिए, रिडीम मत करिए, यह एक म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, पूरे फंड इंडस्ट्री में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों ने सुना, रिडीम नहीं किया, कुछ लोगों ने नहीं सुना, रिडीम किया। आज 6 महीने बाद जिसने रिडीम नहीं किया, वह जब अपनी एनएवी देखता है, अपना पोर्टफोलियो देखता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास बनता है कि उस दिन मैंने नीलेश भाई की बात सुनी, उस दिन मैंने बाकी म्यूचुअल फंड सीईओ की बात सुनी, तो वो सही निकली। एट द सेम टाइम जिसने रिडीम कर दिया, वह भी आज ये तो जरूर सोचता होगा कि यार मैंने इनकी बात नहीं सुनी, मैंने गलती कर दी। सो एक है कि आपकी नीयत, आपकी कंडक्ट किस तरह से इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देती है, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, इनके साथ निवेश करने में, इनकी बात सुनने में मेरे लिए योग्य है। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी की है। आज बंबई में एक पीएमसी बैंक है जो उठ गया, उनके सारे पैसे एक ही बोरोवर के पास थे, उसने हाथ ऊपर कर दिए एंड लोगों का पैसा फंस गया। अब उसके सामने जब कोई मुझे पूछे कि नीलेश भाई आपका म्यूचुअल फंड पीएमसी बैंक तो नहीं बनेगा, मैं उसे सीधे अपना पोर्टफोलियो दिखा सकता हूँ कि ये पोर्टफोलियो है, अगर आपको लगता है कि ये पोर्टफोलियो में पीएमसी बैंक की तरह मैं भाग जाऊंगा, तो आप निवेश मत करिए, आप मेरे पे भरोसा मत करिए, मेरे पोर्टफोलियो पे भरोसा करिए। मूवमेंट आप पोर्टफोलियो दिखाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। तो एक है ट्रांसपेरेंसी की, किसी को ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े कि आप पीएमसी की तरह भाग जाएंगे क्या। तीसरी चीज जो है वो आपके कम्युनिकेशन है। एक है कंडक्ट, एक है ट्रांसपेरेंसी, तीसरी कम्युनिकेशन। अब ये टाइप का वेबिनार है, मुझे तो आपसे पैसे बटोरने हैं, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि नहीं, इक्विटी में इक्वल वेट रहिए। अब कल को यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो आपको लगेगा कि नहीं, नीलेश भाई ने सही बोला था। मार्केट ऊपर जाता है तब भी आपको लगेगा कि हम भले मार्केट ऊपर गया, बिकॉज नीलेश जी ने बताया था अगर सिचुएशन इस तरह से होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, मैं इक्वल वेट में उसको कैप्चर कर रहा हूँ। तो आप जी बात बोलते हैं वो सही हो या गलत हो, उससे ज्यादा वो क्यों सही होती है, क्यों गलत होती है, उसके ऊपर लोग भरोसा बनाएंगे। ये सारी चीजें आप मिला दे तो इन्वेस्टर अपने आप म्यूचुअल फंड के ऊपर भरोसा रखेगा। एज एमफी, एज कोटक म्यूचुअल फंड, हमारी यही कोशिश है कि एक ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम बना के रखे, दूसरी जो भी काम करे निवेशक के हित के लिए करे, उनको वैल्यू एड करे, इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे, और तीसरा अपना कम्युनिकेशन भी ऐसा रखे कि उनको सही डायरेक्शन मिले। नाउ फाइनली आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते हैं। मालू जी, इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करने के बहुत सारे रीजंस है। एक, इंडेक्स में 0% कैश है, बट मैं तो आपको डे टू डे रिडम्पशन देता हूं, मैं तो 5 से 10% कैश रख के चलता हूं, तो वो कैश की वजह से एक अंडर परफॉर्मेंस आता है। दूसरा, 2 लाख के नीचे की एप्लीकेशन हो तो उसे मुझे एनएवी एक्सेप्टेंस के ऊपर देनी पड़ती है। कई बार ये पैसे इसको भी आपने चेंज कर दिया आते हैं, तो अब वो जाके हमने सेबी में चेंज करवा दिया, रिक्वेस्ट की कि इससे कुछ लोगों को कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो अब से वो 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन की इम्पैक्ट एनएवी पे नहीं आएगी, बट पहले की तो अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, बिकॉज आप 10 दिन के बाद शेयर्स खरीदेंगे और एनएवी पहले की देंगे तो इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाएगी। तीसरी चीज है, निफ्टी में आज रिलायंस का वेट तकरीबन 16% के आसपास है। हम 10% के ऊपर तो स्टॉक ले ही नहीं सकते, और निफ्टी की सबसे बड़ी रैली रिलायंस ने की है, तो मैं रिलायंस पे बुलिश था, बट मैं 10% से ज्यादा रिलायंस ले ही नहीं सका। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडेक्स में से जब स्टॉक आता है या जाता है तो वो क्लोजिंग प्राइस पे हो जाता है, बट हमारे पास जिस क्वांटिटी में शेयर्स है
उसको क्लोजिंग प्राइस पे बेचना या खरीदना इम्पॉसिबल है, मुझे उसके लिए इम्पैक्ट कॉस्ट देनी पड़ती है। तो अब ये सारी चीजों को अगर ध्यान में रखे, 2 लाख रुपए के नीचे की एनएवी एक्सेप्टेंस की, कैश रिडम्पशंस के लिए 10% वेट की कैप, और मोर इम्पोर्टेंटली इंडेक्स में आते जाते क्लोजिंग प्राइस पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सारी चीजें देखें तो आज भी आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इंडेक्स को आउटपरफॉर्म करते हैं। एंड सबसे बेस्ट, आप इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस इंडेक्स से कंपेयर करिए। ऑन एन एवरेज व्हेन आई डिड लास्ट स्टडी, index funds were underperforming index between 0.7% to 1.2%. ये जो रीजंस मैंने अपने लिए बताए उससे बहुत कम रीजंस इंडेक्स फंड में एप्लीकेबल होते हैं, फिर भी वो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई फंड्स आर अंडर परफॉर्म, फंड्स लुक लाइक दे आर अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स। एक बात लास्ट मेरा और है क्वेश्चन, कि जिस तरह से अमेरिका में जितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर है, जितनी पॉपुलेशन है और जितने लोग म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में है, और उसी परसेंटेज में अगर इंडिया में बढ़ते हैं तो इंडिया का मार्केट किस तरह से आगे नेक्स्ट 10 ईयर में आप कैसा देखते हैं? कि अभी यूनिक पेन कितने हैं अपने यूनिक इन्वेस्टर? 130 करोड़ जो 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से कितने यूनिक इन्वेस्टर हैं और आगे क्या आपको संभावना लगती है? सो इस वक्त म्यूचुअल फंड में तकरीबन 9 करोड़ फोलियोस है और 2.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स है। अगर मैं पैन कार्ड देखूं, बैंक डिपॉजिटर्स देखूं, इंश्योरेंस होल्डर्स देखूं, मोटर व्हीकल 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर ओनरशिप देखूं, तो मिनिमम 25 से 30 करोड़ निवेशक होने चाहिए। सो मेरी जर्नी 2.5 करोड़ निवेशक से 25 से 30 करोड़ निवेशक की है। सो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अभी तो हमने बहुत अचीव करना बाकी है, बट मार्केट की रुख इन्वेस्टर का फ्लो डिटरमाइन लंबे समय के लिए नहीं करेगी। अल्टीमेटली हमारे फंडामेंटल्स क्या है वो डिसाइड करेगी। भारत 200-250 बिलियन डॉलर इकोनॉमी था 1990 में, आज 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट कैप बढ़ा। नेक्स्ट 10 साल में ये 2.7 बढ़ के 7-8-10 ट्रिलियन डॉलर हो जाए तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट उसके पीछे पीछे भागेगा। सो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप इन्वेस्टर कितने बढ़ते हैं उससे ज्यादा इकोनॉमी कितनी बढ़ती है उसके ऊपर रहेगा। एंड हमारा व्यू ये है कि अगर इकोनॉमी बढ़ती रहेगी तो हम नए निवेशकों को लेके आते रहेंगे। थैंक यू सर। नीलेश जी, ये पूछना चाहता था एक बात और, कि जो न्यू जनरेशन के जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो 5-6% में अगर मान लीजिए बैंक में अगर इन्वेस्टेड करते हैं और उनका पैसा 15 साल में डबल होता है, उस मेंटेलिटी में ज्यादा लोग जाएंगे या डायरेक्ट स्टॉक या इक्विटी में जो कि जिसमें कि 4-5 साल वेट करना पड़ेगा या 15 साल वेट करेंगे एफडी में? जो नए इन्वेस्टर जोड़े, मेरे को अगर कोई बोलता है बैंक डिपॉजिट बहुत सेफ है, तो मैं उसको सिर्फ यही बोलता हूँ कि भैया मेरे बैंक डिपॉजिट में निवेश करके जो पैसेदार आदमी बना है वो मेरे को दिखा दे। बैंक में जब आप डिपॉजिट रखते हैं तो बैंकर पैसेदार बनता है, आप नहीं बनते। एंड आप आपके आसपास में देखिए, जिसने 1990 के दशक में बैंक डिपॉजिट में पैसा डाल के बैठा था आज वो नौकरी कर रहा होगा। जिसने 2000 में बैंक में पैसा डाल के बैठा था वह भी नौकरी कर रहा होगा, बिकॉज बैंक डिपॉजिट्स हैज नॉट केप्ट पेस विद इन्फ्लेशन। सो आपके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। थोड़ी इक्विटी हो, डायरेक्ट हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, थोड़ा फिक्स्ड इनकम हो, बैंक डिपॉजिट्स हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो, प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो, डेट म्यूचुअल फंड्स हो, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो, थोड़ा रियल एस्टेट हो, रीट्स के यूनिट्स हो या डायरेक्ट रियल एस्टेट ओनरशिप हो, थोड़ा ऑफशोर अलोकेशन हो फंड्स में, और थोड़ा कमोडिटी हो, गोल्ड सिल्वर टाइप्स। यह पोर्टफोलियो
आपके लिए पैसा बनाएगा। सिर्फ एक ही चीज में निवेश करके बैठने से आपके लिए योग्य पैसा नहीं बनेगा। थैंक यू सर। Right, sir. Good Kamal. evening, everyone. Sorry to disturb in between. Nilesh sir has next meeting by 5:20. So I would just like to Yeah. conclude, please. Anyone of you can conclude the meeting. Yeah, so Nilesh sir, thank you so much, sir. And those who have joined us late, I would also like to add here that it's Nilesh sir ki hobby hai to, basically educate investors regarding financial planning. And we are really heartened by this talk, sir. It was really immensely educational. And he has also co-authored a book on financial planning called A Direct Take. So we all hope to read that book, sir. And thank you so much for joining us today. Our sincere thanks to Malu InvestWise, Rameshji Malu and Kamalji Malu for bringing this session to us, and your entire back office team who made this possible. And sincere also thanks to all the members across India, COVE members and guests who have joined this session and made this a very interesting and encouraging exercise for us. Thank you so much, sir. Thank you for being with us today. थैंक यू। थैंक यू आप सभी लोगों का, जिसने भी आप सभी लोगों का धन्यवाद। निलेश जी, आशीष जी, गौरव जी और सभी मेरे निवेशक और मेंबर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के इसे सुना। हम सब सवाल ले नहीं पाए हैं, लेकिन हम 1 to 1 बात कर लेंगे उनसे जिनके हम सवाल नहीं ले पाए हैं। और अगर हम नहीं कर पाएंगे उनकी सवाल, तो हम निलेश जी से हेल्प लेंगे उन सवालों के बारे में, कोई विशेष सवाल है तो। और इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के अटेंड किया। हम इस तरह की सेमिनार और भी आयोजित करते रहते हैं। हम आप निवेशकों से और अच्छा पार्टिसिपेंट चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए इस तरह की चीजें अटेंड करें, और आप अच्छा रहेगा सबके लिए, और आप अपनी नई पीढ़ी मिलने वाले सबको इसके लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। थैंक यू निलेश जी, थैंक यू आशीष जी।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.